smell, but not associated with lower abdominal pain and fever. The Hmm. patient does not have a history of cold intolerance, constipation, somnolence, epistaxis, easy bruisability, cyanosis, and no family history of bleeding disorder or no history of an blood thinning agent, and no history of jaundice or any chronic illness. No history of थोड़ा सा fever with ऊंचा night बोले sweat. मारिया. Hmm. No history of fever with night sweats and contact with tuberculosis. No history of contraception. And patient does not have a family history of breast, colorectal, ovarian, endometrial, and cervical malignancy. No history of weight loss associated with anorexia. Patient has a history of weakness, easy fatigability from last 4 months. Then she has, although my patient has a good dietary habits in the form of milk, meat, eggs, and green leafy vegetables. No history of worm infestation or recurrent urinary tract infections and fever with rigors and chills. 2 months back, patient presented through outpatient department where her ultrasound was carried out and she was informed that there is a mass in the uterus and some oral medications in the form of capsule and Ponston Fort and 21 days tablets were prescribed. She was taking regularly these medications with good compliance, but no symptoms has been relieved. Now patient comes in outpatient department. She wants the definitive treatment in the form of fertility sparing surgery. My patient has a para three females, two alive issue. The last child birth 2 years back. In her first two pregnancies, first female is 7 years of age and second female is of 5 years of age, and there was no antenatal, intrapartum, or postpartum complication, and both the babies achieved good milestones, breastfed and fully vaccinated. And last conception was 2 years back, and during antenatal routine antenatal checkup, she was diagnosed that there is a mass in the uterus. At the time of the surgery, 3 units of the blood has been arranged, but there was no intrapartum or postpartum complication, and no blood was transfused to the patient. The baby was delivered at a term, and at the baby has a mass on the back and also the club foot. Baby lived for 4 months and then died. Patient does not take folic acid preconceptionally and also in first 3 months of that pregnancy, and no history of diabetes, epilepsy, specific drug intake, fever, flu, rash, or family history of anemia. Her medical and surgical history is insignificant. Her bowel, bladder, dietary habits are normal, and normal sleep and wake cycle. Her husband is a farmer and she leaves her own house, and her necessities of the life are met with ease. On examination, her BMI of 24 kg per meter square with pulse rate of 84 beats per 80 beats per minute with blood pressure of 120 by 80 millimeter of mercury. Her respiratory rate was 16 breaths per minute, and temperature was 98.6 Fahrenheit. She is looking paler, but no cyanosis, jaundice, clubbing, chylonychia, leukonychia. Thyroid is not enlarged, edema is not present, and accessible lymph nodes are not palpable. There is normal vesicular breathing with no added sound, and apex beat is at fifth intercostal space, medial to mid clavicular line, with first and second heart sound is audible with no added sound, and both breasts are symmetrically enlarged with no mass palpable in all the four quadrant of both breast, and there is no discharge and bleeding from the nipple. Abdomen, on abdominal examination, abdomen is slightly protuberant. Previous scar was is visible. Umbilicus is central. Abdomen is moving with respiration. Was no stria. Visible pulsation is observed. On superficial palpation, abdomen is soft, non-tender, and on deep palpation, a mass is palpable in lower abdomen into hypogastric region, that is 18 weeks size, up to the below the level of the umbilicus, firm in consistency, central, smooth surface, well-defined margin, freely mobile side to side. Lower limit is not reachable. Overlying skin is pinchable, and overlying temperature is normal, and mass is dull on percussion but resonant in the flanks, and lymph nodes are not palpable.
On local examination, vulva is healthy looking. Her hair distribution is normal. On sterile speculum examination, vaginal walls are normal looking, and cervix is also normal looking. But there is mild bleeding from the os. Pap smear was taken, and on bimanual examination, uterus is 18 week size, firm inconsistency, smooth surface, बाय regular मैनुअल margin. रिपीट कर दें जरा, बाय मैनुअल रिपीट कर दें, आपकी आवाज बहुत स्लो थी. जी मैडम, on bimanual examination, uterus is firm in consistency, 18 week size, smooth surface, regular margin, cervical motion shifted towards the mass, and mass is not separately felt from the uterus, and there is a fullness in all the forearms more towards the left side, and there is bleeding on my gloved fingers at the end of the examination. सर्विक्स का आपने क्या बताया? Madam, cervix is normal looking, and there was a mild bleeding from the cervix. No polyp is observed. No polyp or any. नहीं, शिफ्टिंग का आपने क्या बताया था? मैडम, सर्वाइकल मोशन शिफ्टेड टुवर्ड्स द मैस. मैडम, वो बाई मैनुअल में बताया था कि सर्विक्स को जब मतलब मोबाइल करते थे तो वो टुवर्ड्स द मैस, ऊपर यूट्रस की तरफ मोबिलिटी जाती थी, मतलब कि वो यूट्राइन सर्वाइकल मैस है. मोशन शिफ्टेड टुवर्ड्स मैस. जी सर. अच्छा, लेकिन आपने तो कहा ये सेंट्रल मैस है. मैडम, सेंट्रली था. तो फिर सर्वाइकल मतलब सर्विक्स जो है वो कैसे शिफ्टेड टुवर्ड्स मैस हो गई? मैस इज सेंट्रल, नहीं मैडम, तो सर्विक्स को मैडम भी मैं ये सेंट्रल कहना होना चाहिए. मैडम मैडम ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब जब हम सर्विक्स को मूव करते हैं तो अलोंग विद मैस वो मूव करती है. अच्छा, चले आगे चले. जी हो गया मैडम. खत्म आपका? मैडम, जी जी मैडम, खत्म हो समराइज गया. कर दें इसको. जी मैडम, 30 समराइज years इसको of कर दें. जी मैडम, 30 years of age, married for 8 years, para 3, previous 3 cesarean section, 2 female babies, presented with बाकी लोग complaint अपना of माइक feeling बंद कर दें प्लीज. अच्छा. presented with complaint of feeling of lower abdominal mass, 2 years and continuous vaginal bleeding from last 4 months, and on examination she is paler looking, and on abdominal examination abdomen is slightly protuberant. Previous scar was visible on superficial palpation. The abdomen is soft, ये जो non-tender, चीजें आप not बता रहे deep. हो ना, ये थोड़ी सी अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. प्रीवियस 3 आपने कह दिया, बस ठीक है. इसमें जी जो मैडम. है वो आपने उसका सिम्टम बता दिए. बाकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे एक लोअर एब्डोमिनल मैस है, दैट्स ऑल. और क्लिनिकली That is शी lower abdominal mass of. लुक्स पेल. ठीक है, इसमें सारी जी मैडम. डिटेल समरी में बताना जरूरी नहीं होता. जस्ट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दैट पेशेंट, जिससे पता चल मैडम जाए कि पेशेंट है किसके, कौन सा केस है इस पेशेंट में. ठीक है, तो मैडम अब हम पूरा आते हैं abdominal आपकी. examination नहीं बताना होता. हाँ जी. मैडम पूरा जी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नहीं. मैडम नहीं, पूरा सारा बताने की एब्डोमिनल जरूरत नहीं है. एग्जामिनेशन नहीं सारा बताना. बताने की जरूरत नहीं है. सिर्फ जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स है वो प्रीवियस 3 सर्जरियन आपने बता दिए, वो स्कार जाहिर हो गई, वो एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है. अलबत्ता ये है कि उसका जो मैस का साइज है वो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो जी उसका मैडम. सिर्फ साइज ऑफ द मैस एंड वेयर इट इज लोकेटेड, दैट्स ऑल व्हिच यू नीड टू मेंशन ऑन समरी. और बाकी पेल्विक एग्जामिनेशन कंफर्म्स दिस फाइंडिंग, यानी वही 18 वीक साइज का मैस है, सेंट्रल है और अटैच्ड विद द यूट्रस, दैट्स ऑल. जी अब मैडम. इसमें जो आपकी हाँ जी, नाउ यू आर फिनिश्ड विद दैट. जी मैडम. अच्छा, इसमें आपने पेशेंट ने आपको हिस्ट्री दी कि ये मेरा अल्ट्रासाउंड पे ये डायग्नोज हुआ है. सो इवन बिफोर डूइंग एग्जामिनेशन आपके जेहन में एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाली चीज बन गई, और जाहिर हिस्ट्री पे भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं विच आर फेवरिंग योर डायग्नोसिस. अभी हम डायग्नोसिस की तरफ नहीं आए, but still why you asked for so many other reasons for heavy vaginal bleeding in this case? If the patient says that the ultrasound which she is having with her shows a uterine mass, उसको ये नहीं पता मैस क्या है और क्या नहीं है, लेकिन यूट्राइन मैस का उसने बता दिया, तो क्या फिर भी आप ये सारी हिस्ट्री पूछोगे जो एब्नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग की वजह बन सकती है? जी मैडम पूछेंगे, क्योंकि मैडम उसको मैस तो 2 ईयर से है ना, लेकिन ब्लीडिंग हाँ. की हिस्ट्री उसकी 4 मंथ से है, तो हम अदर कॉजेज को तो रूल आउट करेंगे ना. अब मैस जो है उसका 2 साल से तो वो मैस की कंप्लेंट बता रही है, लेकिन ये है जी कि मैडम. उसका एक तो एज 30 इयर्स,
what contraception she is having. Last one child is 2 years. Now she is continuously bleeding for last 2 months with irregular episodes of spotting and all that. तो इसमें अपार्ट फ्रॉम द मैस, अब मैस जो पिछले 2 साल से मौजूद है, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन दैट हैज गिवन राइज टू कंटिन्यूअस वेजाइनल ब्लीडिंग। अब इसमें उसमें कुछ और वजह भी देख, कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं होती जिसकी इतनी शॉर्ट हिस्ट्री हो, तो व्हाट एल्स कैन बी द पॉसिबल कॉज जिसको आपने डिटेल में एवेलुएट नहीं किया इस हिस्ट्री में? मैडम मैंने जो ब्लीडिंग की बाकी कॉजेज हैं उनको तो रूल आउट किया है, हाइपोथायराइडिज्म को, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को, और इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन को रूल आउट किया है, और इसके अलावा मैडम बट कॉन्ट्रासेप्शन मैंने प्रेगनेंसी प्रोबेबली रजिस्टर नहीं किया क्योंकि आपकी आवाज बीच में बिल्कुल डिम हो जाती थी। मैडम कॉन्ट्रासेप्शन नहीं के मैडम, क्या मैंने करेगी? patient does not take any contraception. She wants madam a baby. Okay, so जी मैडम। can it be due to some pregnancy complication in this patient who is trying for conception, not practicing any contraceptives, and now for last 4 months she is having irregular vaginal bleeding? उससे रिलेटेड तो आपने कोई सवाल नहीं पूछे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपने ट्यूबरक्लोसिस तक की हिस्ट्री पूछ ली, हालांकि वो इतना शॉर्ट टर्म उस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं होती उसकी, लेकिन ये है। और दूसरी मैंने प्रीवियस प्रेगनेंसी जी मैडम मैंने नहीं, प्रीवियस प्रेगनेंसी अभी की कॉम्प्लिकेशन पूछी मौजूदा थी। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट प्रॉब्लम। आपने प्रीवियस हिस्ट्री पूछ ली, वो ठीक है, वो जो उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री थी वो आपने डिटेल में बता दी, बट you have not asked about any other pregnancy related events in this current problem जो 4 महीने से उसको है। और दूसरी चीज ये कि जो 4 महीने से इसको ब्लीडिंग शुरू हुई, what were the immediate preceding events? Did she have any overdue periods या उसको नॉर्मल ड्यू टाइम पे पीरियड स्टार्ट हुए और उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हुई? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी आपको इस तरीके से रखनी पड़ेगी। देखो, इसका पिछले 2 साल से उसने मैस नोट किया है और उसी मैस के साथ उसने कंसीव भी किया, अनलेस के इसका जो है वो साइज बढ़ गया हो ओवर द पीरियड्स ऑफ 2 years, जो आपने मेंशन नहीं किया कि पहले उसका मैस कितना था और अब क्या उसने नोट किया है इंक्रीज इन साइज या उतना ही है। क्योंकि अगर ये उतना ही है तो व्हाई इट हैज गिवन राइज टू कंटिन्यूअस वेजाइनल ब्लीडिंग फॉर लास्ट 4 months? इसलिए इसमें हमें प्रेगनेंसी को रूल आउट करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब टू सम एक्सटेंट आई एग्री कि उसमें जो इतनी शॉर्ट हिस्ट्री है उसमें अब बाकी चीजें भी पूछ लो। अब हालांकि इसमें हाइपोथायराइडिज्म वो सारी कुछ चीजें भी नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें बाकी भी आपने काफी सारी डिटेल उसमें पूछ ली। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन जो पूछने वाली थी वो थी कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। इसलिए 4 महीने पहले उसकी जो ब्लीडिंग कंटिन्यूअस शुरू हुई, उससे पहले क्या हुआ, इमीडिएटली क्या हुआ, और उससे उसके जो पीरियड जो पहले बिल्कुल रेगुलर थे, ऑल ऑफ अ सडन इट हैज बिकम नाउ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, तो उसकी वो वाली सारी प्रॉब्लम इसको आ गई। तो इसलिए यंग एज, लास्ट born child 2 years back, not practicing any contraception, rather she is trying for conception, तो इसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन तो सबसे पहले आप पूछोगे। तो उससे रिलेटेड ठीक है कि इसके पीरियड जो लास्ट वाले पीरियड जो 4 महीने पहले शुरू हुए थे वो ड्यू डेट पे शुरू हुए थे या ओवर ड्यू होके आए थे? और इसके अलावा ड्यू डेट पे, हाँ जी जी मैंने ना पेशेंट से पूछा था, वो ड्यू डेट पे शुरू हुए थे, वो शायद मैंने इसमें ना मेंशन नहीं किया, वो मेरी गलती है मैडम। हाँ, देखो इसमें आपने जो एक अपेरेंटली पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से जो रीजन बनती है ना, जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस बनती है, नॉट द ओनली रीजन, तो उसको आपने थोड़ा सा डिटेल में बताना है, ठीक है जी मैडम। तो बाकी इसका मैस का साइज पहले कम था, अब ज्यादा हो गया या उतना ही है, ये भी बताने की जरूरत है, ठीक है मैडम, क्योंकि उसमें सारी चीजें तो आपने दुनिया जहान की बता दी, बीइंग द कॉज फॉर दिस शॉर्ट ड्यूरेशन सिम्टम, लेकिन आपने प्रेगनेंसी का अगर पूछा भी था तो आपने बताया नहीं है, और जो चीज बताई ना जाए इसका मतलब होता है वो पूछी नहीं गई, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव थिंग। अब हम आते हैं आपके एग्जामिनेशन की तरफ। इसमें
ये बाकी जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे था वो आपका ठीक था, लेकिन एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई कि सेंट्रल मैथ के साथ व्हाई यू नीड टू चेक द सर्वाइकल मोशन शिफ्टिंग। ये एक मतलब ये चीज जो है वो इसको जरूरी नहीं होता बताना कि सर्वेक्स जो है वो उसके साथ मूव करती है या नहीं करती, बिकॉज इफ यू आर नॉट फीलिंग द यूट्रस यूट्राइन बॉडी सेपरेट टू द मैस। अब बात दफा ऐसे होता है कि बिल्कुल ये सेंट्रल होता है जिसमें यूट्रस को आप अलहदा से बिल्कुल फील नहीं कर सकते, और sometimes you can feel the separate location of the fibroid though it is attached with the uterus, लेकिन यूट्राइन बॉडी को आप अलहदा से फील कर सकते हो और फाइब्रोइड के मैस को आप एंटीरियर या पोस्टीरियर या लैटरल सरफेस पे अलहदा से फील कर सकते हैं, तो वो तो एक अलहदा चीज है। लेकिन जो सेंट्रल मैस है, व्हाई यू नीड टू मेंशन के सर्वाइकल मोशन शिफ्टिंग, ये आप इसको स्किप कर दें, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली दैट इज अंडरस्टूड कि जो सेंट्रल फाइब्रोइड है वो उसमें वो सेपरेट फील आपको नहीं हो रहा, दैट इज पार्ट ऑफ द यूट्रस। इसलिए इसीलिए इसके रेगुलर मार्जिन्स भी हैं। इरेगुलर मार्जिन हो तो हम कह सकते हैं कि ये सेपरेट एक फाइब्रोइड मैस जो है, एक तो मैस वो होता है जो आपको एडनेक्सा में फील हो रहा होता है एंड यू कैन फील द यूट्रस टोटली सेपरेट फ्रॉम इट। एक वो मैस है जो स्टिल अटैच्ड विद द यूट्रस एंड व्हेन यू मूव द यूट्रस दैट आल्सो मूव्स। उसमें सिर्फ खाली सर्विक्स को मूव करने की बात नहीं होती है, लेकिन इस मैस में जो बिल्कुल सेंट्रल है उसमें स्किप दिस थिंग, अदरवाइज आपको फिर इसी तरह की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाएगी। तो इसमें अब नाउ व्हाट इज योर डायग्नोसिस? इसमें मेरा ख्याल है आपने साइन सिम्टम्स ऑफ अनीमिया बता दिए थे शायद, बीच में आपकी थोड़ा सा आवाज की क्वालिटी का इशू था। जी मैडम बताए थे, एनीमिया से था। ओके, नाउ व्हाट इज बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? On the basis of history on and examination, my हाँ जी, अभी तक तो आपने ये diagnostic। दो चीजें की है ना। जस्ट फॉरगेट दैट द पेशेंट हैज एनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट विद हर। जी मैडम। अब मरीज ऑन द दिखाते हैं बेसिस। बाद में और अल्ट्रासाउंड पहले करवा लेते हैं, सो दे कम विद द प्रिपेयर्ड माइंड के और ऑलरेडी मेड डायग्नोसिस के हमें ये प्रॉब्लम है, बट यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट अनफ टू टेल द डायग्नोसिस कि उसमें क्या पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकते हैं बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। जी, इसमें क्या डायग्नोसिस होगा? Madam, on the basis of the history and examination, my first diagnosis is fibroid uterus with moderate anemia, and then on the and second diagnosis is any ovarian mass, and due to continuous आपने vaginal मॉडरेट bleeding, एनीमिया वाला लफ्ज क्यों बोला? मैडम। हाउ यू कैन मैडम से साथ ऑन में। एग्जामिनेशन अलोन के ये मॉडरेट एनीमिया है? मैडम सॉरी, वो मैंने इन्वेस्टिगेशन देख ली थी ना, इसीलिए। हाँ, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन पहले कभी नहीं देखनी चाहिए। जी मैडम। ठीक है, जी मैडम। क्योंकि मॉडरेट एनीमिया तो एक लैब फाइंडिंग के ऊपर आप अपना डायग्नोसिस बेस करते हो ना। अदरवाइज एनीमिया माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, दैट इज जस्ट एनीमिया। तो आप सिर्फ क्लिनिकल पैलर पे कमेंट नहीं करते कि ये अनीमिया मॉडरेट है, माइल्ड है या सीवियर है, बट जस्ट पेशेंट लुक्स पेल या क्लिनिकल पैलर इज पॉजिटिव। चलें जी आगे। And madam, due to madam, patient has a continuous vaginal bleeding, so can be any endometrial pathology in the form of polyp. And madam, any cervical polyp. सर्वाइकल पॉलिप आप एग्जामिनेशन के बाद इसमें बोल सकते हो? नहीं मैडम, एग्जामिनेशन आपने के बाद तो नहीं एग्जामिनेशन बोल। कर लिया है ना, हम तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद की बात कर रहे हैं। अगर खाली हिस्ट्री के बाद डायग्नोसिस होता तो फिर तो उसमें सर्वाइकल पॉलिप आ सकता था, जी मैडम। बट आफ्टर जी मैडम। कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन व्हेन यू हैव सीन द सर्विक्स इटसेल्फ, तो फिर सर्वाइकल पॉलिप तो रूल आउट हो गया। जी मैडम। इसलिए एंडोमेट्रियल पॉलिप हो सकता है। जी मैडम। हाँ जी, मैडम बस यही है। बस यही है। हाँ जी। तो यानी आपका बेसिकली डायग्नोसिस जो बना आफ्टर कंप्लीटिंग योर, क्योंकि इसमें अब एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी और पॉलिप को आप कह सकते हो टू सम एक्सटेंट, बट व्हाई नॉट एनी अदर डायग्नोसिस? इसमें बेसिकली आपका सिर्फ फाइब्रोइड की तरफ ही रहा ना, फाइब्रोइड की तरफ ही आपका रहा। मैडम इसकी क्लियर कट हिस्ट्री जो है ना वो सारी फाइब्राइड की तरफ ही जा रही थी, इसलिए।
मैडम हम्म एडिनोमायोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो उसकी हिस्ट्री है बैंस जो और इसके अलावा उसकी जो एग्जामिनेशन पे के ऊपर सेंट्रल मैस और फर्म इनकंसिस्टेंसी है, 18 वीक साइज यूट्रस है, ये सब जो है ना हम्म एडिनोमायोसिस को तो बिल्कुल भी फेवर नहीं करता, तो इसको तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं रखना चाहिए। एंड हम्म ओवेरियन मैस भी इसी तरह रूल आउट हो जाता है कि ऑन पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, एंड मोस्टली जो ओवेरियन पैथोलॉजीज होती हैं उनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं होते, और इसके अलावा ऑन एग्जामिनेशन पे भी सेंट्रल मैस है, फर्म इनकंसिस्टेंसी है, एंड मैस इज नॉट सेपरेटली फेल्ड फ्रॉम द यूट्रस है। एंड हम्म मैडम जो एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी वाली उसकी जो एज है वो एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी वाली जो है ना लेस लाइकली है, लेकिन इसमें पॉलिप हो सकता है कोई को एग्जिस्टिंग साथ में, कि वो एंडोमेट्रियल जो है बिग ना। साइज पॉलिप हो सकता है, फाइब्रोइड पॉलिप हो सकता है, बिकॉज जी द मैडम। मैस इज होमोजीनियस। ठीक है, वो जी इरेगुलर मैडम। मार्जिन नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्मली एनलार्ज। और जी मैडम, यूनिफॉर्मली और कई एनलार्ज सब इसलिए म्यूकोजल बेसिकली फाइब्रोइड। एडिनोमायोसिस में बहुत बड़ा साइज ऑफ यूट्रस नहीं होता यूजुअली, एंड द यूट्रस इज यूजुअली सॉफ्ट एंड टेंडर उसमें एडिनोमायोसिस में। तो इसमें आप बाद दफा आपके पास बहुत ज्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस जस्टिफाई करने पॉसिबल नहीं होते। तो इसलिए बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इफ इट फिट्स इनटू वन डायग्नोसिस, तो फिर आप एक डायग्नोसिस भी बोल सकते हो कि द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इस केस में ये है, क्योंकि इसमें ये फीचर्स हैं ऑन हिस्ट्री और ये फीचर्स हैं ऑन एग्जामिनेशन। तो लेकिन ये है कि बाकी जो एंडोमेट्रियल को एग्जिस्टेंट एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी और बिग एंडोमेट्रियल पॉलिप स्टिल कैन नॉट बी रूल्ड आउट अनलेस वी गो फॉर द फर्दर स्टडीज। बट वेयर द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन विल फिट इन दिस पिक्चर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उसको तो हमने किसी तरीके से रूल आउट नहीं किया। जी तो मैडम फाइब्रोइड आई। यूट्रस जाहिर है किसी और पैथोलॉजी के साथ भी तो हो सकता है। ठीक है, फाइब्रोइड अब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ये नहीं है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, और इसमें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए इसमें अगर मिस्ड पीरियड की हिस्ट्री नहीं है इवन देन, फिर भी आप इसमें जो है वो उसमें एक रेयर पॉसिबिलिटी उसकी भी बात आप करोगे। तो इसलिए आपने जब एग्जामिनेशन जो इन्वेस्टिगेशन आप बोलोगे उसमें भी इसको हमने रूल आउट करने वाली चीज बोलनी है। जी तो मैडम। चलें अब आगे इसको हम अब इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। जी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, एंड हम्म मैडम इस पेशेंट का ना जस्ट अल्ट्रासाउंड हुआ हुआ था, इसकी बेसलाइन नहीं हुई हुई थी, तो वो अगर आप मुझे देना नहीं, मतलब अभी एक हम एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ब्लड। की अभी आप बेशक नहीं हुई हुई, देखो आप बाद जी दफा मैडम। क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं जो कि सिर्फ एक दिन पहले एडमिट हुए होते हैं या उसी दिन भी एडमिट हुए होते हैं, उनके तो टेस्ट नहीं होते। तो एग्जाम उसमें जब आप एग्जामिनर से मांगते हो तो समटाइम्स वो अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बता देते हैं जस्ट टू कंटिन्यू द डिस्कशन। तो इसलिए जी मैडम। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप मांगोगे कौन जी कौन सी जी मैडम। मैडम फर्स्ट बेसलाइन। ऑफ ऑल आई नीड द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड प्लेटलेट काउंट, एंड आई नीड हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड anti-HCV towards postprandial and midstream urine for microscopy and biochemistry including pus cell protein and glucose. And as my patient was anemic, then I also need RBCs, indices, and peripheral blood film for typing of the anemia, and also the serum ferritin. And in specific investigation, I need beta HCG for to rule out pregnancy. And I also need abdominopelvic ultrasound for uterine size, endometrial thickness, number, size, and location and type of the fibroid, whether it is submucosal, subserosal, or intramural, and ovarian status, and status of the kidney, ureter, and bladder. अच्छा, इसमें हीमोग्लोबिन सपोज इट्स 8 और हमें जी पता मैडम। है कि ये 4 महीने से ब्लीड कर रही है, सो दिस इज द रीजन फॉर हर लो हीमोग्लोबिन। देन व्हाई यू वांट टू हैव ऑल द प्रोफाइल ऑफ एनीमिया। एनीमिया वर्कअप आप सारे का सारा उसकी इन्वेस्टिगेशन, पेरिफेरल स्मीयर है, सीरम फेरिटिन है, आरबीसीज इंडिसेस है, फिर आप उसको क्यों करवाना चाहोगे जबकि हमें पता है कि इसके पीछे रीजन इसकी 4 महीने की ब्लीडिंग है।
मैडम सीरम फेरेटिन नहीं, मैडम गाइडलाइन के मुताबिक सीरम फेरेटिन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन आरबीसी इंडिसेस और पेरिफेरल ब्लड फिल्म फॉर टाइपिंग ऑफ द एनीमिया के लिए तो करवाना होता है। हम्म, अच्छा, ठीक। जी मैडम। अब इसकी आ गई हीमोग्लोबिन 8, ठीक है। जी मैडम। और अल्ट्रासाउंड की पिक्चर इसकी क्या थी? मैडम अल्ट्रासाउंड पे जो है वो 2 फाइब्राइड्स, एक 7 into 8 सेंटीमीटर ऑन दी फंडल रीजन एंड सेकंड वन इज 4 into 5 सेंटीमीटर का इन सर्वाइकल रीजन। 4 into 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल रीजन में? फिर तो आपको सर्विक्स का एग्जामिनेशन करते हुए पता चल जाना चाहिए था। ओके, नाउ विद ऑल ऑफ दीज रिपोर्ट्स हाउ विल यू गो फॉर द मैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस? जी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एज माय पेशेंट आई मैडम ओपीडी बेस पे था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंसल द आफ्टर फुल आफ्टर कंप्लीटिंग माय इन्वेस्टिगेशन आई विल काउंसल द पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस दैट देयर इज सम mass in the uterus that make you symptomatic and disturb her quality of life and make the patient anemic. It's and as my patient is para 2, she wants the she desires fertility, so this mass should be treated for her symptomatic relief and for future fertility in the and she needs the fertility sparing surgery in the form of myomectomy. So I will admit the patient. I will optimize her general health. I optimize her. I will make the patient amenorrheic by giving the patient as my patient has previously taken tablet, madam, progesterone 2 tablet TDS with good compliance, and she and her symptoms was not relieved. So I will give the patient. I will for making the patient amenorrheic by injection Zolodix 3.6 milligram subcut monthly for making the patient amenorrheic. And then I will optimize her hemoglobin up to the 11 gram per deciliter. And after optimizing her general health and making her amenorrheic, I will take the detailed consent from the patient about the nature of the surgery, risk of the intraoperative hemorrhage, need for blood transfusion and blood transfusion related injuries, the risk of the, as my patient is previous to cesarean section, there is a risk of the bladder damage or bowel damage, and there is a less than 1% risk of the hysterectomy. After taking the detailed consent from the patient, I will take the anesthesia fitness and put the patient on upcoming list. And on the day of the surgery, shift the patient to the OT. And then after induction of the ओके, anesthesia, अभी हम यहाँ पे uh, रोकते हैं, ठीक है। एक मिनट। जी मैडम। अच्छा, इसको आपने कहा कि हम आपकी मायोमेक्टमी ही करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव डिसाइडेड फॉर मायोमेक्टमी, ठीक है, देन व्हाई यू आर गिविंग हर GnRH एनालॉग्स? व्हाई हम इसको देखो, 4 into 5 सेंटीमीटर फाइब्रोइड इज नॉट दैट बिग। 7 into 8 सेंटीमीटर फंडल फाइब्रोइड यूजुअली डजंट गिव राइज टू ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी का उसके साथ कोई ऐसा वो नहीं होता। तो इसमें मायोमेक्टमी का क्या डेफिनेट रोल है, और यू कैन हैव द अदर चॉइसेस ऑफ ट्रीटमेंट एज वेल। और क्या हमने मरीज मैडम को वो सारा कुछ बताया? क्योंकि उसका इस जी वक्त मैडम करंट मैंने भी। प्रॉब्लम, शी वाज लिविंग विद दैट मैस फॉर लास्ट 2 years, और उसने बॉदर नहीं किया टू एंड कम टू एनी डॉक्टर एंड टू सीक ट्रीटमेंट। But now, for the problem of this continuous bleeding, she has consulted her medical opinion. तो इसमें आप क्या इसको ऑफर कर सकते हो? अदर मायोमेक्टमी इज वन ऑफ द चॉइस, बट व्हाट एल्स? इसमें जब भी हम किसी पेशेंट को किसी सर्जरी के लिए हम काउंसल करते हैं, तो उसमें हमेशा ऑल्टरनेट ऑप्शंस की उसको बताया जाता है विद ऑल द प्रोज एंड कॉन्स related with that, with different particular options, and also the that why you have chosen a particular treatment specifically for that patient. तो इसलिए मैडम एज माय पेशेंट। जी मैडम, हाँ जी, as my patient wants wants the fertility and her uterine size is 18 week size, मैडम इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट का तो कोई रोल नहीं है। एंड मैडम यूटाइन इसके अलावा जो है यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, वो भी जो है ना जिनको नहीं फर्टिलिटी देखो, डिजायर लेकिन होती है उसमें। इसमें जो ज्यादा देखो, 4 into 5 सेंटीमीटर का सर्वाइकल फाइब्रॉइड इज नॉट दैट बिग।
अब ये क्योंकि सर्वाइकल फाइब्रोइड जब हो तो कम से कम हमें पेल्विक एग्जामिनेशन पे जरूर पता चल जाता है कि इंट्रा सर्वाइकल है या क्या है। और मैडम वो ना इसमें लोअर बाद दफा सेगमेंट में लिखा लोकलाइज हुआ था। एक सर्वाइकल सरफेस पे होता है और बाद दफा पूरी सर्विक्स सर्कमफ्रेंशियली इन्वॉल्व होती है इसमें। और 7 to 8 सेंटीमीटर का फंडल फाइब्रोइड तो फर्टिलिटी के साथ कुछ नहीं करता। फिर जी मैडम। हम्म तो मैडम पेशेंट जो है वो ब्लीड भी कर रही है और पेशेंट जो है ना उसको प्रोजेस्टेरॉन से उसका अफेक्ट नहीं है, तो फिर हम उसको सर्जरी से पहले जो है ना तो उसे हो सकता है सर्जरी से इम्यूनोनिक भी तो वो करेंगे ना। सर्जरी से भी उसका मसला हल ना हो। ठीक है, तो फिर जी इसमें हम मैडम। क्या कर सकते हैं? शी हैज जस्ट टेकन टेबलेट Pramlodipine सो फार। जी मैडम। मैडम मैडम नहीं समझ आ रही। अच्छा, ठीक है। इसमें बेसिकली इसका मसला है इस वक्त वेजाइनल ब्लीडिंग का ज्यादा फॉर 4 months। ये जो प्रॉब्लम इसका फाइब्रोइड का है वो 2 सालों से है। उसी के साथ उसने कंसीव किया और उसके बाद उसने फर्स्ट टाइम नोट ही किया आफ्टर द लास्ट बर्थ। ऐसा ही है ना? तो जी इसमें जो मैडम। है इसमें बेसिकली व्हेन वी हैव एवेलुएटेड हर फॉर द फर्दर इसमें जो सारा हमने वर्कअप किया उस पर हमें पता चला कि इसके 2 फाइब्रोइड्स हैं, 7 into 8 सेंटीमीटर का फंडल और 4 into 5 सेंटीमीटर का सर्वाइकल। क्या ये दोनों फाइब्रोइड्स जो हैं ये ब्लीडिंग कर सकते हैं? सर्वाइकल वाला कर सकता है। अब ये नहीं हमें पता कि ये पॉलिप तो नहीं है, ज़ाहिर आपने पेल्विक एग्जामिनेशन किया है, लेकिन पेल्विक एग्जामिनेशन पे अगर सर्विक्स आपको बिल्कुल इसकी अपनी ओरिजिनल शेप में मिल जाती है तो फिर इसका मतलब है दिस कुड बी अ सुप्रा सर्वाइकल फाइब्रोइड, सर्विक्स के जी मैडम बिल्कुल वो ऊपर। ओरिजिनल शेप में थी। जी ठीक है, मैडम। तो ये वाली चीज हो सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द डिसकंटिन्यूअस वेजाइनल ब्लीडिंग फॉर लास्ट 4 months। ठीक है, ये जो 4 months से ब्लीडिंग है दिस कैन बी रिलेटेड मोर टू दिस सर्वाइकल फाइब्रोइड रादर देन फंडल फाइब्रोइड। फंडल फंडल रीजन का मतलब ये है कि क्या ये सब सिरोजल है या इंट्राम्यूरल है। ये चीज हमें अल्ट्रासाउंड पे पता करने की, क्योंकि खास तौर पे जब हम इसके सिम्टम्स को एवेलुएट कर रहे होते हैं या जो हमने ट्रीटमेंट की चॉइसेस को कंसिडर करना होता है तो फाइब्रोइड मैपिंग बहुत जरूरी होती है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब आपने फंडल रीजन का फाइब्रोइड तो बता दिया, लेकिन ये नहीं पता कि सब सिरोजल है, इंट्राम्यूरल है या सब एंडोमेट्रियल है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड पे ये हमें चीज पता चल जाएगी। इफ इट इज सबसिरोजल दिस हैज मैडम वो नथिंग टू डू इंट्राम्यूरल विद था। हर इनफर्टिलिटी और विद हर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। अगर ये इंट्राम्यूरल है या सब एंडोमेट्रियल है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी मैनेज्ड स्पेसिफिकली। तो इसमें इसकी फाइनल मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी। सो फंडल रीजन का फाइब्रोइड होना इज नॉट अनफ इंफॉर्मेशन unless you know the exact position of that fundal fibroid। ठीक है, फंडल फाइब्रोइड तो तीनों लोकेशंस में हो सकते हैं और बाकी ये जो सर्वाइकल फाइब्रोइड है। नाउ कमिंग बैक टू द मेडिकल ट्रीटमेंट व्हिच शी हैज रिसीव्ड सो फार कि Pramlodipine उसने लिया लेकिन रिलीफ नहीं हुआ। सपोज हर बीटा ईसीजी इज नेगेटिव, प्रेगनेंसी को हमने रूल आउट कर लिया। नाउ वी विल consider the final management of this fibroid as it has resulted into anemia, moderate anemia. Now we can say it moderate anemia because hemoglobin is found to be 8। और इसके अलावा उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डेफिनेटली इम्पेयर्ड। तो इसमें अब फाइनल मैनेजमेंट में हमारे पास चॉइसेस क्या क्या आ जाती हैं, क्योंकि सो फार हार्मोनल मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंट्रोल हर ब्लीडिंग। So for the final management, there would be conservative as well as the surgical management. तो सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाने से पहले शुड वी ट्राई सम मेडिकल ऑप्शंस और नॉट, अपार्ट फ्रॉम द हार्मोनल प्रेपरेशन जो हमने Pramlodipine वगैरह इसको दी और उससे मैनेज नहीं हुआ। क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि बेसिकली उसने Pramlodipine कितनी डोज में ली, कितने अरसे के लिए ली, रेगुलरली ली या ना ली। क्योंकि यूजुअल सिनेरियो जो होता है ऐसे पेशेंट्स का हु आर नॉट वेरी मच अफोर्डिंग एंड नॉट वेरी मच कंप्लाइंट, एज सुन एज ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड दे स्टॉप द मेडिसिन and when the bleeding restart they restart the medicine and this can worsen the situation। तो बेसिकली जब आप ड्रग हिस्ट्री ले रहे होते हो तो आपने ये सारी चीजें भी उससे पूछनी होती हैं, तभी आपको उसका एक्चुअल बैकग्राउंड पता चलेगा
कि अगर उससे रिलीफ नहीं हुआ तो उसके पीछे वजह क्या है, क्या मेडिसिन इन सॉरी मेडिसिन इनटेक में कोई प्रॉब्लम है या अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट हैज फेल्ड टोटली। तो उस सूरत में वी विल मूव टू द अदर ऑप्शंस। अब बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं उसमें आपने एक जीएनआरएच एनालॉग्स की बात की, ठीक है। अब जीएनआरएच एनालॉग्स इस पेशेंट में इसकी इंडिकेशन या बेनिफिट्स क्या होंगे इस पेशेंट में देने के। अब सपोज मैडम हम अभी इस सिनेरियो को मजीद प्रैक्टिकल बनाने के लिए हम ये देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे दिस इज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, मैडम इंट्राम्यूरल अल्ट्रासाउंड पे 7 मैडम सेंटीमीटर का। जी जी, मैडम अल्ट्रासाउंड पे इंट्राम्यूरल फाइब्राइड ही दिया हुआ था, ये दिया हाँ, हुआ था क्योंकि इस सिनेरियो 7 में फिट ही इंट्राम्यूरल होता है, क्योंकि सब सिरोजल के जी साथ तो मैडम। ना ब्लीडिंग होनी चाहिए ना इनफर्टिलिटी होनी चाहिए। इंट्राम्यूरल कैन जी अफेक्ट मैडम। इनफर्टिलिटी टू सम एक्सटेंट एंड कैन गिव राइज टू हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग। अब उसकी वजह क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी ये कैसे करता है और हैवी ब्लीडिंग क्यों करता है इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड और सब एंडोमीटर। तो सपोज दिस इज इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड ऑन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। तो अब इसमें हम जीएनआरएच एनालॉग्स की आपने कहा कि मैं इसको दूंगी। अब जीएनआरएच एनालॉग्स इन अ पेशेंट हुज हस्बैंड इज अ लेबरर, वो कहाँ तक प्रैक्टिकल है एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू मैनेज द पेशेंट फाइनली, जो उसका ये प्रॉब्लम है, ये इसके बारे में आप हमें बताएं। Madam, actually patient has taken tablet Primaloot and 2 tablet TDS with good compliance for 2 month, and patient's husband is a farmer. Her necessities of the life are met with ease. I have discussed with the patient about GnRH analog during history, because the patient is symptomatic and her surgery is delayed due to and patient is जो है ना उसे मतलब वार्ड वाले उसे एडमिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो है ना मतलब इलेक्टिव सर्जरीज नहीं हो रही, तो टू मेक फॉर नहीं, वो 1 to चीज 2 आप month, तो मेंशन नहीं टू मेक करोगे द ना, वो पेशेंट। देखिए जब आपने पेशेंट की वो करनी है, दिस इज नॉट जी द मैडम। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर जीएनआरएच बिकॉज दिस इज अ टेम्परेरी फिनोमेना। एग्जाम में जब आप बात कर जी रहे मैडम। होते हैं तो आप आइडियल मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं एंड देन समवन कैन आस्क यू अबाउट द वर्स्ट सिचुएशन के, फर्ज किया अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। तो जी इस मैडम। पेशेंट में आप ये नहीं बोलोगे कि इसमें इलेक्टिव सर्जरी नहीं हो रही तो इसलिए हम इसको एडमिट नहीं कर रहे। यू हैव टू टॉक विद द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें आपने जीएनआरएच एनालॉग्स इसलिए क्यों दिया, इसमें आप एडमिशन और सर्जरी की बात छोड़ दें, आप इसको जी मेडिकल मैडम, मैं फैक्ट्स पे बेस पेशेंट को करें यही अपनी डिस्कशन को। मैडम बिकॉज इसका जो है ना हार्मोनल ट्रीटमेंट वाज फेल्ड, ठीक है, तो सो हार्मोनल आई ट्रीटमेंट वांट टू फेल हो गया, पेशेंट मेक ठीक है। I want to नाउ make वी the हैव टू patient चूज amenorrhea। बिटवीन द, ठीक है, नाउ वी हैव टू चूज बिटवीन द मेडिकल एंड द सर्जिकल मैनेजमेंट। तो जी इसमें मैडम। इसके हम मैडम प्रोज बिफोर एंड द कॉन्स सर्जरी, इसकी डिस्कशन चलेगी। हाँ जी, जी मैडम बिफोर as patient's hemoglobin is 8 gram per deciliter, to after making the hemoglobin we will optimize her hemoglobin, because मैडम अगर हम उसको ब्लीडिंग के साथ ही उसे ब्लड लगा देंगे तो वो तो उसका लॉस हो जाएगा, तो फिर तो उसकी हेमोग्लोबिन बिल्ड नहीं होगी और फिर हम सर्जरी नहीं इसमें कर सकते। नहीं मैडम हीमोग्लोबिन मैं इस 8 यानी प्रोस्पेक्टिव आप में इसकी दे रही हूँ। सिर्फ अनीमिया को बिल्डअप करने के लिए जीएनआरएच एनालॉग्स दे रहे हैं। इसके अलावा मैडम फिर सर्जरी भी तो इजी हो जाएगी, और अगर देखें 18 वीक इजी साइज हो है तो जाएगी। उसमें फिर हम्म, मैडम इस तरह इजी मतलब कि 18 वीक साइज के लिए हमें मिड लाइन इंसियन देना पड़ेगा, और अगर इसका साइज रिड्यूस हो गया तो फिर हमें जो है ना इसे लोअर इंसियन से, लोअर ट्रांसवर्स इंसियन से हम जो है ना इसको ओपन कर सकते हैं। ये बात वैसे 18 वीक्स का साइज का फाइब्रॉइड भी थ्रू फेन एंड स्टील हो सकता है मैनेज, लेकिन ये बात ज्यादा एप्लीकेबल होती है टू द नली पैरास ऑन द अनमैरिड गर्ल्स, ठीक है। तो इसलिए ये फाइब्रॉइड साइज की रिडक्शन बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकें डजंट मेक एनी सेंस इन अ पेशेंट हु इज पैरा 3। तो वो उसमें एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू नहीं रहता। तो इसमें जीएनआरएच एनालॉग्स की और क्या जस्टिफिकेशन होगी। मैडम देखो बस आप इसमें तो यही इसके वाली है। जीएनआरएच एनालॉग्स को प्री ऑपरेटिवली जो है वो दे तो सकते हो,
अब इसमें ये एक डिबेटेबल इशू है। अब ये डिबेटेबल इशू ये है कि इसमें आपने अगर प्री ऑपरेटिवली इसको देना है, इफ यू हैव डिसाइडेड फॉर द फाइनल मैनेजमेंट, तो GnRH analogs is not the final management, this is just an interval management. Interval management इसलिए कि जब आप for any reason you are delaying the surgery, when the patient is so symptomatic and for some reason another we cannot perform surgery right now. और इसमें अनमैरिड गर्ल्स में तो इसकी और भी जस्टिफिकेशन जो आपने सारी बताई वो सारी इस पे अप्लाई होंगी, नॉट इन दिस पेशेंट पर्टिकुलरली जो खासतौर पे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से भी है। तो इसमें आप उस वक्त दे सकते हो, मतलब उसमें रिलेटिवली इंडिकेशन तब होगी कि पेशेंट इज ब्लीडिंग हैवीली एंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शोज इंट्राम्यूरल विद द रिच ब्लड सप्लाई एंड डॉपलर फ्लो ऑफ द फाइब्रॉइड. So it is expected that the patient can bleed heavily during the procedure of myomectomy, जो कि फिर भी इसमें डायरेक्ट जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं बनती कि हमारे पास बहुत सारी हीमोस्टेटिक मेजर्स और भी होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मायोमेक्टमी जिनको हम कर सकते हैं. तो GnRH एनालॉग्स उस पर ये एक सिर्फ इसका एक वन ऑफ द बेनिफिट्स है कि GnRH एनालॉग्स नॉट ओनली रिड्यूसेस द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड बट इट आल्सो रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू दैट फाइब्रॉइड. बट एट द सेम टाइम इसमें मायोमीट्रियल थिकनेस यानी जो उसका सूडो कैप्सूल है वो थिन हो जाता है और उसका जो प्लेन्स हैं वो इतने वेल डिफाइंड नहीं रहते. सो देयर मे बी लिटिल डिफिकल्टी, टेक्निकल डिफिकल्टी इन डूइंग मायोमेक्टमी. तो ये तो इसके एंड दिस कैन नॉट बी गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 साइकिल के 2 साइकिल्स के लिए भी, और बाज दफा ये होता है कि हम ऐसे पेशेंट्स को जिनमें हमने डिसाइड कर लिया है कि वी हैव टू गो फॉर द फाइनल मैनेजमेंट, जैसा कि इस पेशेंट में हम कर सकते हैं बिकॉज दिस कैन शी कैन नॉट गो ऑन विद द मेडिकल मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टाइम. हम इसको GnRH एनालॉग्स मुस्तकिल नहीं दे सकते. मेडिकल मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी बीन फेल्ड एंड व्हाट एल्स इज लेफ्ट. व्हाट एल्स इज लेफ्ट इंक्लूड्स a uterine artery embolization है, again not cost effective. और uterine artery embolization in a patient who is wishing for the fertility is another issue. और इसके अलावा जो मायोलाइसिस है, जो क्रायोमायोलाइसिस है, जो थर्मोकोएगुलेशन है, दीज आर अदर हाईटेक फैसिलिटीज जो कि जिनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं है. सो मोर फेवरेबली वी विल गो फॉर द मायोमेक्टमी. This we can go right now after the transfusion and after raising her hemoglobin to the optimum level. For myomectomy, it should be at around 11 hemoglobin जो है. अब इसमें फिर GnRH एनालॉग्स अगर आपने एक लगा भी दिया तो वो थोड़ा सा साइज उसको रिड्यूस कर देगा, ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देगा, जो कि हम इसको फेनन स्टील इंसिजन से भी 18 वीक को कर सकते हैं और हम जो ब्लड सप्लाई की मैनेजमेंट है वो भी हम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी. तो GnRH एनालॉग्स को अब बहुत स्ट्रांगली जस्टिफाई इसमें नहीं कर सकते. ठीक है, चाहे आपने पेशेंट के साथ तो पेशेंट तो देखो मजबूरी के मारे ये कहेगा कि हाँ मैं ये भी लगवा लूंगी, बट वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज के इसमें पेशेंट फिर हम इसको एमेनोरिक कैसे करेंगे? हाँ जी मैडम मैं ये पूछ रही हूँ कि इसको फिर एमेनोरिक कैसे करेंगे? आप एमेनोरिया इसका क्यों करना चाहती हो? इफ यू वांट टू, इफ वी रिमूव द फाइब्रॉइड इटसेल्फ द कॉस्ट विल बी रिमूव्ड. ठीक है, और मैडम मैं हीमोग्लोबिन बिल्डअप करने के लिए करना चाह रही थी. बिल्डअप कर लो, इसमें अभी आप ब्लड लगा लो और बस हीमोग्लोबिन बिल्डअप करके इसकी मायोमेक्टमी कर दो. आप पेशेंट को लिंगर ऑन क्यों करना चाहते हैं? 4 महीने के बाद वो अब आई आपके पास हीमोग्लोबिन 8 के साथ. इट मींस शी इज नॉट दैट कंप्लायंट. Though she has gone to some other doctor and she has taken this Pramalutin very religiously, but still she has come so late to the tertiary care hospital. तो उसमें linger on इसको मजीद करना when it has resulted in the fall of hemoglobin and her quality of life is so much compromised. और आप उसको ऑप्शन दे रहे हो GnRH एनालॉग्स की for how much time, और इसमें हम इसको प्रॉब्लम को मजीद लिंगर ऑन कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, इसका निकालना ही सही है. तो ऐसे पेशेंट्स में वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कि इस मरीज की एक फाइनल मैनेजमेंट करके भेज दें, चाहे वो एग्री भी करे कि GnRH एनालॉग्स लगा देंगे, एक लग जाएगा फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा, फॉर हाउ मच टाइम शी कैन अफोर्ड टू हैव इट. ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें बेसिकली मायोमेक्टमी ही इसकी ज्यादा जस्टिफिकेशन बनती है. अगर ये होता सबसिरोजल फाइब्रॉइड
तो फिर मैं इसमें कहती कि ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विद द जिन आर एच एनालॉग्स इवन दो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इशू आर स्टिल देयर। लेकिन ये है कि इसमें जो है, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम इसका ये फंडल फाइब्रोइड ही कर रहा है, बाकी सर्वाइकल फाइब्रोइड कैन बी अ रीजन, जो प्रोबेबली जो मुझे समझ आ रहा है आपके एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है कि ये सुप्रा सर्वाइकल होगा, नॉट इन द सर्वाइकल टिश्यू इटसेल्फ, वरना आपको इसकी फाइंडिंग्स पता चल जाती पेल्विक एग्जामिनेशन पे। तो इसमें जो है वो फिर हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन गो फॉर मायोमेक्टमी। और अगर आपका बहुत इश्यू है कि इसमें मैंने इसको एमेनोरिया करना है, वो तो इसको एक इंजेक्शन भी लगाओगे तो एमेनोरिया हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि कुछ ये इसका रिस्पॉन्स बहुत फर्क होता है, बहुत वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। इन सम पेशेंट्स इट कैन रिजल्ट इन एमेनोरिया फॉर मेनी मंथ्स, इन सम पेशेंट्स स्टिल द पेशेंट कैन ब्लीड बट इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट। तो इसलिए जो है वो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, और आप सिर्फ इस बेस पे कि इसका मजीद ब्लड लॉस ना हो, ऑलरेडी हीमोग्लोबिन 8 है, इसको मैं एमेनोरिया करना चाहती हूँ, इसको ब्लड हीमोग्लोबिन ऑप्टिमाइज करके और फिर मैं इसकी मायोमेक्टमी करूँ, उससे पहले मैं एक इंजेक्शन लगाना चाहती हूँ, तो टू सम एक्सटेंट यू कैन से दैट, लेकिन इसकी फाइनल मैनेजमेंट रहेगी ही मायोमेक्टमी। तो मायोमेक्टमी इसमें इससे मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज वी कैन डिस्कस सो मेनी थिंग्स। अब अवेलेबल ऑप्शन तो बहुत सारी हैं फाइब्रोइड यूट्रस की, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने ये देखना होता है कि आउट ऑफ ऑल दीज बहुत सारी मैनेजमेंट विच वन फिट्स द पेशेंट मोस्ट, और ये हमने देखना होता है उसके क्लिनिकल सिनेरियो के हिसाब से, उसकी विशेस एंड डिजायर्स के हिसाब से, उसके रिप्रोडक्टिव कैरियर के हिसाब से, और उसमें अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रोइड मैपिंग के हिसाब से, एंड द सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो इसलिए जो है वो आपने आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस समटाइम्स यू कंबाइन वन और टू ऑप्शंस आल्सो, जैसे आपने जीएनआरएच एनालॉग्स को प्री ऑपरेटिवली लगा दिया मायोमेक्टमी से पहले, तो इसी तरह से 2-3 ऑप्शन कंबाइन हो सकती हैं, और बाज दफा हम किसी एक सिंगल ऑप्शन को भी लेके चल सकते हैं। अब डेफिनेटली प्राइमेलो-10 ने तो सिर्फ ब्लीडिंग कंट्रोल करनी थी, उसने फाइब्रोइड को तो मैनेज नहीं करना। तो जीएनआरएच एनालॉग हैज एन एडिशनल बेनिफिट के ये फाइब्रोइड साइज को भी मैनेज करेगा और ये ब्लीडिंग को भी मैनेज करेगा, बट इट विल बी अ टेम्परेरी इफेक्ट, पेशेंट को दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो फिर दोबारा आपके पास फाइब्रोइड ने भी रीग्रो कर जाना। So this cannot be mentioned as a sole treatment. This can be mentioned to some extent in combination with myomectomy. So myomectomy remains the final answer in this patient. जी मैडम। हाँ जी, अब हम आते हैं, is it clear so far? जी मैडम, थैंक यू मैडम। मैं इस प्रोस्पेक्टिव में इसको लगाना चाह रही थी, जीएनआरएच की वो ब्लीड करी और मैंने उसे एमेनोरी करना है, तो मैं एक इंजेक्शन लगा के इसको को जो है हीमोग्लोबिन लेवल इसका बिल्डअप कर लूं, और देखो उसके बाद ये इंजेक्शन भी लगा सकते हो, इवन आप डिपो प्रेपरेशन प्रोजेस्टेरोन की भी लगा सकते हो, वो भी एमेनोरिया कर देता है, तो वो जरा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो भी आप लगा सकते हो। तो लेकिन मैम सब सीरोजल में क्यों देंगे जीएनआरएच, उसमें क्या सिग्निफिकेंस है? सब सीरोजल में क्यों देंगे जीएनआरएच, मतलब डिफरेंस क्या है कि हम वैसे नहीं देंगे पर सब सिरोजल में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब सिरोजल में ज्यादा से ज्यादा ये मसला होता है कि अगर उसका कोई लंबा पेडिकल है या नैरो पेडिकल है तो इट कैन अंडरगो टॉर्शन, अदरवाइज वो ना तो ब्लीडिंग करता है ना वो फर्टिलिटी के साथ मसला करता है, तो उसमें तो जीएनआरएच एनालॉग्स देने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, हम तो इस इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड की बात कर रहे हैं जी। अब हम आते हैं मायोमेक्टमी की तरफ, ठीक है, तो अब हमें इसका जरा मायोमेक्टमी का बता दें। जी मैडम, आफ्टर इंडक्शन ऑफ anesthesia, I will ask the anesthetist to give antibiotics so that before going for the surgery, the maximum antibiotic should be present into the blood, and then after under aseptic measure, after cleaning draping, I will open the abdomen. As uterine size is less than 20 week size, so I can open the abdomen through lower segment transverse incision, and then I will after opening the abdomen, I will see the uterine anatomy and location of the fibroid and its relationship with adnexa.
मैडम जो इंट्राम्यूरल फाइब्राइड है उसको मैं की जो है ना रिलेशनशिप विद एडिनेक्स देखूंगी. देन वी विल बिफोर गोइंग फॉर द myomectomy we can do the measures for to prevent the patient from the intraoperative hemorrhage, in which we can occlude the uterine artery or at the level of the uterine artery at the level of the from the at the level of the lower uterine isthmus, and also अब इसके we can प्रीवियस 3 occlude the सेक्शन है, ब्लैडर एडहेरेंट है, सर्वाइकल जो है वो ये फाइब्रॉइड है, तो इसकी मौजूदगी में आप कैसे यूट्राइन आर्टरी ऑब्लिटरेशन करोगे? मैडम आफ्टर क्योंकि जब आप बेसिकली जब आप टेक्निक्स की डिफरेंट टेक्निक की बात करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सर्जिकल स्टेप्स की बात करते हैं, तो always keep in mind the difficulties the patient might be having due to previous surgeries and exactly due to the presence of fibroids. अब इसका cervical fibroid है 4 into 5 सेंटीमीटर, जो अगर ये सुपरा सर्वाइकल भी है तो उसके हिसाब से ये बड़े साइज का है, जिसकी मौजूदगी में शायद आप उस तरह से वो कोई यूट्राइन आर्टरी जो है वो उसको ना कर सको. तो इसमें जो है वो फिर आप इसको कैसे मैनेज करोगे? और दूसरा ये कि प्रीवियस 3 है तो इसमें ब्लैडर एडहेजन भी एक्सपेक्टेड है. जी मैडम, एंड अनदर ऑप्शन इज मैडम वेजोप्रेसिन इंजेक्शन भी तो लगा सकते हैं ओवर फाइब्राइड. और मैडम आप पहले कौन सा फाइब्रोइड करोगे, सर्वाइकल या एंड इस सूरत में जो हमारे पास केस है इसमें एक सर्वाइकल फाइब्रोइड है, एक फंडल फाइब्रोइड है, इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड है, और ये जो कि आपको फंडस में ही फील हो रहा है, एंटीरियर भी उतना ही है जितना पोस्टीरियर फील हो रहा है, मतलब यूट्राइन वॉल के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ. तो पहले आप कौन सा मैनेज करोगे, सर्वाइकल या फंडल? इंट्राम्यूरल मैडम, नहीं मैडम फंडल फाइब्राइड पहले करूंगी ना. पहले क्यों मैडम? क्योंकि उसके लिए अप्रोच इजी है ना, और मैडम पेशेंट की पहले प्रीवियस सर्जरीज भी है, भी तो निकालना है, उसको छोड़ तो नहीं देना कि ये अप्रोच डिफिकल्ट है. नहीं मैडम उसको छोड़ नहीं देना, लेकिन बाद में हम ब्लैडर को रिफ्लेक्ट डाउनवर्ड करके और उसके बाद तो ये ब्लैडर ये वाला काम आप पहले क्यों नहीं कर सकते? ब्लैडर को तो हमें डिसेक्ट करना पड़ेगा, ये काम हम पहले क्यों नहीं कर सकते? जी मैडम, ये वैसे पहले भी कर सकते हैं. हाँ, तो वो को तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि ये वो थोड़ा सा मुश्किल है तो उसको हम बाद में कर लेंगे, वो तो हम पहले भी कर सकते हैं. उसका फायदा क्या होगा? लेकिन मैडम हमें अप्रोच इजीली, हमें पहले फंडल फाइब्राइड मिलेगा ना, तो फिर हमें वही पहले नहीं करना चाहिए. यू मीन कि उसकी मौजूदगी में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज सर्वाइकल फाइब्रोइड? जी मैडम, और देखिए इतना लार्ज फाइब्राइड है. जी मैडम, इतना लार्ज फाइब्राइड है 7 इंटू, उसके लिए हमारे लिए डिफिकल्ट अप्रोच होगी कि हम पहले जो है ना सर्वाइकल सुप्रा सर्वाइकल फाइब्राइड करें ना. तो मैडम जब हम ऊपर वाला इंट्राम्यूरल फाइब्राइड को निकाल लेंगे, उसके बाद जो है ना हमारी वीएन ज्यादा जो है ना बेहतर हो जाएगी फॉर दी सुप्रा सर्वाइकल फाइब्राइड के लिए. लेकिन अगर बहरहाल ये बहुत सारी चीजें तो इंट्राऑपरेटिवली ही पता चलती हैं, लेकिन अगर हम इसको जो है सर्वाइकल फाइब्रोइड को पहले निकाल लें, तो अगर इफ इट इज टेक्निकली फिजिबल तो जाहिर है ब्लैडर डिसेक्शन हम कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है. और जब फाइब्रोइड होता है तो यूट्रस कैन कम आउट ऑफ द इंसिजन वेरी इजीली, तो उसमें अमूमन इतना मसला वैसे होता नहीं है, तो प्रैक्टिकली इतना मसला नहीं होता. तो इसलिए इसको करने का फायदा ये होगा सर्वाइकल फाइब्रोइड आफ्टर डिसेक्शन ऑफ द ब्लैडर, मे बी ब्लैडर एडहेरेंट मे बी ना भी हो, कि आप आसानी से टोर्निकेट लगा सकते हो फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड. दो इट यू कैन डू द रिवर्स, कि आप उसमें जो है वो बाकी चीजें करते हुए आप इसको वो कर सकते हैं, पहले इंट्राम्यूरल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बड़ा फाइब्रोइड है, इट हैज मोर वेस्कुलर बेड, और इसके अलावा उसमें आपको डिसेक्शन ज्यादा चाहिए, तो इसमें ज्यादा जो होगा डेफिनेटली ब्लीडिंग इज एक्सपेक्टेड. तो उससे पहले क्योंकि जो हम बेसिकली मैडम अगर हम ट्रांसवर्स इंसिजन से कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यही नहीं होगा कि हम पहले फंडल ही फाइब्राइड कर लें, इससे हमारी वीएन ज्यादा बेहतर होती है. अगर हम अब ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली होता है. अब देखो, जो हम यहाँ डिस्कशन में जो मैनेजमेंट स्टेप्स की बात कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट फाइनल विद यू, नॉट फाइनल विद मी. देयर मे बी डिफरिंग ओपिनियंस, आप डिफर कर सकती हैं ओपिनियन.
तो इसमें ये सिर्फ हम इसमें ये बात कर रहे होते हैं कि अगर हम ऐसा कर लें तो उसमें ये जस्टिफिकेशन इसकी हो सकती है, उसका ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। अब प्रैक्टिकली दिस विल डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम। तो अगर फिजिबल हो, इसमें लफ्ज फिजिबल की बात है कि अगर ये इजी हो, फिजिबल हो, और अगर हम सर्वाइकल फाइब्रोइड पहले निकाल लें आफ्टर अप्रोप्रिएट ब्लैडर डिसेक्शन, तो इसमें कम से कम ये होगा कि हम इसको यूट्राइन आर्टरी की ऑब्लिटरेशन कर सकते हैं बाय वॉट एवर मीन्स। दिस यू कैन डू बाय एप्लीकेशन ऑफ द टोर्निके, दिस यू कैन डू बाय यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन इवन, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अब उसके लेकिन अगर ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम मतलब उसमें आप तक वहां तक पहुंचना मुश्किल है, तो डेफिनेटली यू हैव टू डील विद द फंडल फाइब्रोइड फर्स्ट। अब फंडल फाइब्रोइड को सपोज आप कह रहे हो फंडल फाइब्रोइड को ही मैंने डील करना है पहले, तो हाउ यू विल अप्रोच दैट फाइब्रोइड? जी मैडम I will give the longitudinal incision over the most prominent part of the fibroid and लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, ठीक है। ये जो फाइब्रोइड है ना, ये है सपोज ये बिल्कुल सेंटर ऑफ उसमें है, फंडस पे है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सरफेसेस पे हमें इक्वली फील हो रहा है, तो राइट ऑन द डोम ऑफ द फंडस। तो then I will give the जब आप मिड लाइन इंसिजन दोगे, तो दैट विल गो ऑन द फ्रंट, दैट विल गो ऑन द बैक, आपको बिल्कुल उसके फंडस के ऊपर देना पड़ेगा। इज इट मैडम अगर फिजिबल? फंडस के ऊपर है तो उसके लिए हम करेंगे बोनी हुड ऑपरेशन ना, उसके लिए हमें ना लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन जो है ना ओवर दी में क्या लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन होता है? नहीं मैडम, उसमें ना ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं ओवर दी एंटीरियर यूट्राइन सर्विस के ऊपर, So which सरफेस one के is ऊपर ना। better? You have mentioned the longitudinal first and then the bony suit. नहीं मैडम, अगर इफ देयर इज अ लार्ज फंडल फाइब्राइड सेंट्रल इन पोजीशन एंड मैडम कवरिंग द बोथ एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर, देन देयर मोस्ट appropriate is the transverse incision made on the anterior uterine surface and then enucleate the fibroid from the capsule, and then capsule should be trimmed and sewed over the anterior uterine wall. Okay, उसकी हम डिटेल में So बाद में जाते हैं। और longitudinal incision आप किस केस में दोगे? मैडम वो तो फिर हम जो फाइब्राइड जो है ना, फंडल फाइब्राइड नहीं होगा, उससे जरा जस्ट एंटीरियर सरफेस को कवर कर रहा होगा या यानी पोस्टीरियर को। अगर बिल्कुल एंटीरियर सरफेस पे है टोटली या पोस्टीरियर सरफेस पे है टोटली, उसके लिए आप दोगे? जी मैडम। बेसिकली जो टाइप ऑफ इंसिजन है ना, दैट अगेन इज डिबेटेबल। बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे, तो इसमें जो है वो कि लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस ट्रांसवर्स इंसिजन्स। अब लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन को फेवर करने वालों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जो किसी हद तक वैलिड भी है, कि इसमें जो है वो एक तो ट्यूब्स की इंजरी डेफिनेटली नहीं होती, और दूसरा ये कि मिड लाइन में जो आर्कुएट वेसल्स विच आर ब्रांचेस ऑफ द स्पाइरल आर्टेरियोल्स, वो जो है वो दीज रन ट्रांसवर्सली एंड दीज आर जो है ये इसका कम ये दरमियान में मिड लाइन में मिलती हैं, वहां पे कम ब्लड सप्लाई होता है। बट दिस सिचुएशन इज ट्रू जहां तक ब्लड वेसल्स का पैटर्न है कि इसमें मिड लाइन हमें देने से लेस ब्लड सप्लाई है, दैट इज ट्रू फॉर अ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस या नॉन फाइब्रोइड यूट्रस, बट इट्स नॉट ट्रू व्हेन देयर इज अ फाइब्रोइड इन द यूट्रस। इसलिए कि जब फाइब्रोइड हो जाता है, फाइब्रोइड है मौजूद है 7 into 8 सेंटीमीटर का, सपोज ये एंटीरियर सर्विस पे है या पोस्टीरियर सर्विस पे है या ये फंडस पे है, तो उस सूरत में उसका वेस्कुलर आर्किटेक्चर इज टोटली लॉस्ट। तो उसमें मिड लाइन इंसिजन से ये सोचना कि इसका ब्लड सप्लाई, इसका ब्लड लॉस कम होगा, इट्स नॉट अ रियल सिचुएशन। इसमें ब्लड लॉस उसमें भी उतना ही होता है यूजुअली जो कि हम ट्रांसवर्स इंसिजन में देते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स इंसिजन का एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि इसमें वुंड हीलिंग एंड लेटर स्कार फॉर्मेशन इज बेटर एज कंपेयर टू दैट विद द लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, क्योंकि इसका एक तो सिर्फ हमें लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, लेकिन डेफिनेटली हम उसके बल्क ऑफ द मैस और उसकी जो लोकेशन ऑफ द मैस पे भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंसिजन। लेकिन एक ऐसा मैस जो कि जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों से आप निकाल सकते हो अप्रोप्रिएटली, तो उस सूरत में फिर ट्रांसवर्स विल बी अ बेटर चॉइस।
तो लेकिन अगर ऐसी जगह पे है कि जिसमें आपने अगर ट्रांसवर्स दिया तो उसमें ट्यूब्स में जाने का खतरा है, तो फिर आप उसको लॉन्गिट्यूडनल निकाल लो। लेकिन फॉर द सेम सिचुएशन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स नहीं है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस ट्रांसवर्स में कोई एडिशनल उसका नुकसान हो सकता है बाय गिविंग ट्रांसवर्स, तो उस सूरत में आपने मिड लाइन देना है। अब जहां तक सर्वाइकल फाइब्रेट का है, सर्वाइकल फाइब्रेट वहां पे एक नैरो एक स्पेस होता है, साइड पे यूट्राइन वेसल्स होती हैं, यूरेटर्स होती हैं, तो वहां पे आप उसको मिड लाइन से निकाल सकते हैं। तो मिड लाइन से वहां पे निकालना इज मोर अप्रोप्रिएट। अब ये भी आपने देखा होगा कि सिजेरियन सेक्शन पे हम हमेशा ट्रांसवर्स देते हैं, जो अपर सेगमेंट का होता है वो हम मिड लाइन देते हैं, इसीलिए मिड लाइन स्कार के रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दैट विद द ट्रांसवर्स इंसिजन। अब उसकी वजह किसी हद तक अपर सेगमेंट में मायोमीट्रियम का ज्यादा होना और लोअर सेगमेंट में मायोमीट्रियम का कम होना भी है, कि उसमें फाइब्रस टिश्यू ज्यादा होता है, दैट हील्स विद द फाइब्रस टिश्यू, और अपर सेगमेंट में फाइब्रस टिश्यू कम, मायोमीट्रियम ज्यादा है, एंड इट अगेन्स हील्स विद द फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक्स द स्कार वीक। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट भी सोचें तो फिर भी ट्रांसवर्स इंसिजन की हीलिंग इज बेटर, और जो एक एडिशनल रिस्क है हमारा ज्यादा ब्लड लॉस का विद द ट्रांसवर्स इंसिजन, वो शायद हमारी थोड़ी सी ओवर एजम्पशन है, क्योंकि फाइब्रोइड की होने की सूरत में ये हमारी जो एजम्पशन है ये इतनी फिर रियल सिचुएशन में रहती नहीं है। तो इसलिए आप इसको अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द लोकेशन ऑफ द फाइब्रोइड डिसाइड करोगे, बोथ ऑफ इंसिजन यू कैन गिव। ठीक है, क्योंकि ये बाज दफा सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी कि आपने इसको मिड लाइन देना है या ट्रांसवर्स देना है, तो आपको ये सारे उसके रियल फैक्ट्स पता होने चाहिए कि ट्रांसवर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन। तो चलें जी, अब आपने इसको दिया बोनीस फूड इंसिजन दिया। अब now how you will arrest the hemorrhage? You will try to arrest the hemorrhage by modifying your technique of myomectomy. क्या myomectomy techniques हैं जिनसे आप amount of blood loss कम कर सकते हैं? Because that is a real danger faced by the surgeon during a process of myomectomy. और आपने इसमें conservative surgery तो करनी ही करनी है. Your aim is that. जी मैडम, मैडम वो टू बी सबसे पहले तो वही के occlusion of the uterine arteries and ovarian arteries at the level of the infundopelvic ligament. तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो मसला तो यूट्राइन आर्टरी के साथ होता है which is a main source of blood supply। तो उसमें वही बात है ना कि अगर सर्विक्स पे अगर फिजिबल है तो आप वो टोर्निके लगा सकते हो, which can be anything। आप रबर ट्यूबिंग भी उसमें बांधी जा सकती है, उसमें ऑल अराउंड वो ओवेरियन वेस्ट, चूंकि आप ब्रॉड लिगामेंट का सारा उसमें बीच में लेके आते हो, आप उसको होल बना के नहीं कर रहे। यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन के लिए तो होल बनाना पड़ता है, लेकिन जब आप उसके एडनेक्सा को भी नीचे ला के वो उसमें सारा उसके टोर्निके लगाते हैं तो उसमें वेरियन वेसल, यूट्राइन वेसल आर बोथ कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर एटलीस्ट। उस टोर्निके को लगाने का भी एक टाइम पीरियड होता है, आप उसको फॉर लॉन्ग ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो एक तो वो हो गया। मैडम वेज़ोप्रेसिन इंजेक्शन लगा सकते हैं ओवर द बेस ऑफ द फाइब्राइड ना? वेज़ोप्रेसिन इंजेक्शन आप कहां पे लगाओगे मैडम? वो फाइब्राइड के ऊपर लगाएंगे ना, बेस ऑफ द फाइब्राइड के ऊपर, जहां पे आपने इंसिजन देना है वहां पे। जी मैडम। मैडम नहीं, उससे वहां पे आप लगाएंगे, नीचे पे। ठीक है। एंड एज यू गो डाउन इन द फाइब्रोइड बेड, तो आप बेड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इवन सिंटोसिनोन, वेज़ोप्रेसिन अवेलेबल नहीं है, सिंटोसिनोन कैन आल्सो बी गिवन। इवन साइटोटेक कैन बी गिवन टू कीप द यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड, क्योंकि देखो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके जो अब अगर आप उसके मसल्स के आर्किटेक्चर और उनकी ओरिएंटेशन अगर देखें तो उस सूरत में ये क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है मायोमीट्रियल सेल्स का, and the spiral arterioles run in between among those muscle fibers, myometrium के। So when the muscle fibers are contracted under any effect of oxytocic agents, तो उस सूरत में फिर आपने वो vessels compress हो जाती हैं। So we can assume supposedly it causes the less amount of blood loss। तो वेज़ोप्रेसिन होगी, ऑक्सीटोसिन होगी, अगर आप इंट्रामायोमीट्रियल वो लगा दें, टोर्निके है, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन है और साइटोटेक है। और साइटोटेक को हमेशा आपको पहले देना पड़ता है, ये आप सर्जरी से पहले आप देते हैं। और ट्रांसएमीन तो डेफिनेटली आपने उसको साइड बाय साइड देना ही होता है।
What else? मैडम इंजेक्शन Can एंड you give मैडम incision over the fibroid by coagulation cautery? मैडम मुझे समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन की। मेरा मतलब ये है कि जब आप फाइब्रोइड के ऊपर इंसिजन दे रहे होते हो, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स व्हाटएवर, उसकी डिस्कशन हमने कर ली कि कब क्या कैसे देना और किसके क्या फायदे नुकसान है। आप जो भी इंसिजन दे रहे हो वो क्या एक मैडम वो फाइब्रोइड इतना कॉटरी से बड़ा भी सा दे है, सकती हैं। तो वो जी क्या मैडम, एक कोगुलेशन लीनियर कॉटरी से भी दे इंसिजन सकती होगा, चाहे वो ट्रांसवर्स साइड चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है, क्या वो लीनियर इंसिजन होगा? है। जी मैडम। वर्टिकल इंसिजन ठीक होगा है, ना। इसको मैं दूसरे तरीके से सवाल करती हूँ। लीनियर इंसिजन का मतलब ये है कि आपने सिर्फ एक इंसिजन, बस एक लाइन इंसिजन की दे दी, बट इट शुड बी एलिप्टिकल। एलिप्टिकल का मतलब ये है कि जो इतनी जो सूडो कैप्सिल उसका स्ट्रेच हुआ है, आप उसमें रिडंडेंट टिश्यू उसी वक्त निकाल लेते हो, और इस इंसिजन को आप कॉटरी के साथ भी कर सकते हैं। कॉटरी भी इज अनदर मीन फॉर रिड्यूसिंग द ब्लड सप्लाई। अगर कि इसको डायरेक्ट आप अगर नाइफ के साथ करें और साथ साथ कोएगुलेशन करते जाएं तो दैट इज वन थिंग, लेकिन अगर आप खाली कोएगुलेशन कॉटरी से भी कर लें तो दैट इज ऑल्सो वर्केबल सोल्यूशन। तो इसलिए आप एलिप्टिकल इंसिजन दोगे, कॉटरी के साथ आप कर सकते हैं, या फिर नाइफ के साथ देके साथ साथ ब्लीडिंग वेसल्स को कॉटरी कर लें। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, उससे भी ब्लड सप्लाई कम होगा। ये नहीं कि आप पहले सारे इंसिजन दे के फाइब्रोइड निकाल के फिर ब्लड वेसल्स को लाइगेट करें, आप साथ साथ लाइगेट फिर करते जाएं। और उसके बाद फिर जब आप, हाँ जी मैडम नाउ डेज जो है ना मोस्टली तो कॉटरी से ही कर रहे होते हैं ना। हाँ वही ना, वो कॉटरी के साथ कर सकते हैं। सिर्फ उसमें एक चीज होती है कि जब आप टू मच कॉटरी करते हैं ना किसी टिश्यू की, तो उसकी ऑनवर्ड हीलिंग, आप इसको बहुत नीचे जाके कॉटरी बहुत ज्यादा ना करें अनलेस इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन वेसल, क्योंकि जो टू मच कॉटरी है इन मायोमेट्रियम वो दैट विल इम्पेयर द स्कार स्ट्रेंथ, और उससे जो स्कार हीलिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसलिए जो बड़ी वेसल्स होती हैं उनको हमेशा थ्रेड के साथ लाइगेट किया जाता है, और उसमें उसको जो है वो उसका इंसिजन जो क्लोजर है वो भी बेहतर होता है कि हम उसको, बाकी तो स्टिचेस की टाइप वो तो एक अलग सी चीज है, लेकिन कॉटरी की हद तक आपने इलिप्टिकल इंसिजन दिया, और इंसिजन पूरे उसके बल्क पे देना जरूरी नहीं है। जैसे फाइब्रोइड अगर 8 सेंटीमीटर का है तो जरूरी नहीं कि 8 सेंटीमीटर का ही आप इंसिजन दें, आप उसको छोटा इंसिजन देते हैं, उससे पूरे फाइब्रोइड के साइज से छोटा इंसिजन देते हैं, क्योंकि उसने जब ऑटोमेटिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा तो सूडो कैप्सूल की भी वो होगी, तो जब आप अल्टीमेटली व्हेन यू रीच एट द एक्चुअल मैस ऑफ द फाइब्रोइड तो वो डेफिनेटली उससे स्मॉल साइज का होता है। तो ये तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द फाइब्रोइड होना चाहिए जो आपने इंसिजन दिया। और इसके बाद फिर आप सूडो कैप्सूल की आपने केयरफुल डिसेक्शन जरूर करनी है, क्योंकि बाद दफा सूडो कैप्सूल हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे ये फाइब्रोइड का हिस्सा है, लेकिन ये फाइब्रोइड का हिस्सा नहीं होता, वो स्ट्रेच्ड फाइबर्स हैं जो हमें लगता है कि फाइब्रोइड का हिस्सा है, क्योंकि जब आप उसका पूरा फुल थिकनेस काटते हो तो यू रीच एट अ हार्ड टिश्यू ऑफ द फाइब्रोइड। कभी कभी ऐसे होता है कि जिन पेशेंट्स को आपने GnRH एनालॉग्स दिया होता है उसमें एक तो इस सूडो कैप्सूल की थिकनेस कम हो जाती है, दूसरा ये कि उसका जो प्लेन है वो इफेक्ट हो जाता है, लेकिन एक और भी इफेक्ट हमें नजर आता है, वो ये कि वो जो फाइब्रोइड की फर्मनेस है दैट इज लॉस्ट, और बाज दफा फाइब्रोइड बहुत सॉफ्ट हुआ होता है तो उसमें भी क्लिनिकल डिमार्केशन जो है वो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो दिस यू विल गिव इट। और एलिप्टिकल इंसिजन इतना होना चाहिए कि उसका जो आपने जो आपने उसका लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन दिया या ट्रांसवर्स जो भी है मेन जो है उसका एलिप्टिकल इंसिजन उसके 1/3 के बराबर होना चाहिए, यानी उतना नहीं कि जितना आपने दूसरा इंसिजन दिया उसको निकालने के लिए। एक तो मेन इंसिजन है ना वो आपने लॉन्गिट्यूडनल दिया या ट्रांसवर्स दिया, एक है एलिप्टिकल के आपने उसको ओवल शेप में करना है ताकि रिडंडेंट टिश्यू निकल जाए, क्योंकि जब आप अल्टीमेटली फाइब्रोइड के बेड को स्टिच करते हो, अल्टीमेटली आपने उस कैविटी को क्लोज करना है, तो उसमें ना तो रिडंडेंट टिश्यू होना चाहिए और ना ही ऐसा कि अंडर टेंशन आपको क्लोज करना पड़े। तो इसके लिए बहुत लिबरल एलिप्टिकल नहीं देना चाहिए। एलिप्टिकल की जो विड्थ है
विड्थ और लेंथ ऑफ द इंसिजन, ये हम दो चीजें कर लेते हैं। लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन द फाइब्रोइड साइज, और जो विड्थ है वो 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द इंसिजन। ठीक है, ये इस तरह से आपने करना होता है ताकि टू मच टिश्यू ना आप निकाल दें या टू लिटिल टिश्यू ना निकाल दें। अगर ये रिडंडेंट को आप थोड़ा सा रीट्रिम कर सकते हैं बाद में भी, तो इसलिए ओवरडू करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा कम उसका निकालें, एलिप्टिकल आप कम दें, उसकी विड्थ कम दें। ठीक है, चलें, आपने अब ये फाइब्रोइड निकाल दिया और अब इसको आपने स्टिचिंग करनी है। हाउ मैडम ये सर्वाइकल फाइब्रॉइड हम स्टेरोस्कोपिकली भी तो निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसिजन दोबारा इलेक्ट्रिकल की बताएं। समझ नहीं आई कि देखो जो सर्वाइकल फाइब्रोइड है ना, सर्वाइकल फाइब्रोइड अब होता है, अब ये बहुत ये क्लियर नहीं था कि ये सुप्रा सर्वाइकल है, ये कैविटी को ऑब्लिटरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि जहां तक हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल है सर्वाइकल फाइब्रोइड का, तो इवन इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड भी जो है, अगर हमने हिस्ट्रोस्कोपी ही करना हो, वो वाला इंट्राम्यूरल जो बहुत ज्यादा बल्ज कर रहा है कैविटी के अंदर, अगर हम चाहते हैं कि उसको हिस्टेरोस्कोपिकली रिमूव कर लें, तो हम फिर GNRH चैनल लोग लगा के उसका साइज हाफ कर दें और फिर उसको निकाल लें, क्योंकि इतना बड़ा फाइब्रोइड तो नहीं निकल सकता हिस्ट्रोस्कोपी से, लेकिन ये वाला फाइब्रोइड निकल सकता है 4 into 5 सेंटीमीटर, अगर ये प्रोट्यूड कर रहा हो इनटू द एंडोमेट्रियल कैविटी फॉर मोर देन 50% ऑफ इस साइज। तो इसलिए आप जो है वो इसके ऊपर बेस करेगा। एज सच यू कैन नॉट मेंशन कि हम इसको हिस्टेरोस्कोपिकली निकाल लेंगे, बिकॉज समटाइम्स दिस फाइब्रोइड इज लोकेटेड टोटली आउटसाइड द सर्वाइकल कैनाल, दैट यू कैन नॉट टेक आउट थ्रू हिस्टेरोस्कोपिकली। और क्योंकि उसमें हिस्टेरोस्कोपिकली निकालने के लिए भी उसकी साइज लिमिटेशन है, उसकी प्रोट्रूजन इनटू द कैविटी की लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें हैं जो आपने उसके साथ साथ उसको देखनी है, और ये आपको अल्ट्रासाउंड बताएगा। और अल्ट्रासाउंड अगर क्लियरली नहीं बताता, और ये इसके लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, वही हमें इसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बताएगा और एग्जैक्ट प्रोट्रूजन ऑफ द मैस इनटू द एंडोमेट्रियल कैविटी। ये हमें जो ट्रांसवेजाइनल स्कैन हमें ये सही बताएगा। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन हमें पहले चाहिए बिफोर वी टॉक अबाउट हिस्टेरोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द सर्वाइकल फाइब्रोइड। एज इट इज आप चीजों को नहीं कह सकते कि ये सर्वाइकल फाइब्रोइड है तो मैंने इसको स्टेरोस्कोपिकली निकालना है, ओनली व्हेन द कंडीशन अलाउस। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है, बस ये चीज आपकी क्लियर हो गई। यस मैडम ये क्लियर हो गई है। और मैडम व्हाट अबाउट आप लोगों की आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है जी, ऊंचा बोले। मैडम व्हाट अबाउट लेप्रोस्कोपिकली जी, मैडम लेप्रोस्कोपिकली का अगर हम सोचें, हाँ, लेप्रोस्कोपिकली डेफिनेटली यू कैन डू, बट देयर आर नॉट मच लेप्रोस्कोपिक फैसिलिटीज, एंड खास तौर पे एक्सपर्ट पर्सनल्स बहुत कम होते हैं, यानी जो स्किल्ड पर्सन्स हैं टू डू द लेप्रोस्कोपी रिमूवल आर वेरी फ्यू। तो इसलिए जो है वो आप ये साइज ऐसा है कि जिसमें आप कर सकते हो, क्योंकि एक तो ये 10 सेंटीमीटर से कम साइज है दोनों का ही, तो ये लेप्रोस्कोपिकली आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैम एक और, लेकिन मैडम एग्जाम में हम लोग ओपन की हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मैडम एग्जाम में हम ओपन की तरफ ही रहे, क्योंकि हर किसी को नहीं, देखो इसमें अब इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि टू टेल अबाउट द ऑप्शन। अब जब आपने मायोमेक्टमी की बात करनी है तो आप ये कर सकते हो कि दो देयर आर options of laparoscopically as well as laparotomy, but as the laparoscopic skills are very few, and this technique is not available in all the hospitals. DHQs में कहाँ होती हैं, या इवन टर्शरी केयर में भी स्किल्ड जो हैं पर्सन्स हैं इसको करने के लिए वो भी बहुत कम होते हैं। तो इसलिए मायोमेक्टमी is traditionally and generally performed at all setups, but laparoscopically myomectomy is performed at very few setups. तो आप कह सकते हो कि ये भी ऑप्शन है, लेकिन चूंकि हमारे पास ये ज्यादा इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्किल और इसकी जो फैसिलिटीज हैं वो तकरीबन हर जगह पे अवेलेबल हैं, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। मैम अगर फाइब्रॉइड एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी है तो हमें यूट्राइन कैविटी के थ्रू जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या एंटीरियर अलग रिमूव करना चाहिए? पोस्टीरियर भी है, ये हमने एक दो दफा पहले भी बात की हुई है कि अगर फर्ज किया एंटीरियर है, आपने एंटीरियर को निकाल लिया, उसको इन्यूक्लिएट कर लिया, कैविटी ओपन नहीं हुई उसमें, ठीक है, तो इस चीज में क्या लॉजिक है कि आप कैविटी को एंटीरियरली खोलो, फिर पोस्टीरियरली खोलो, फिर पिछला फाइब्रोइड निकालो?
कोई लॉजिक है इसमें कि आपने एक कैविटी तो ओपन नहीं हुई विद द इंटीरियर फाइब्रोइड इन्यूक्लिएशन, लेकिन आप सिर्फ पोस्टीरियर फाइब्रोइड को निकालने के लिए पूरी की पूरी यूट्रस को बाइसेक्ट कर दो। सो देयर इज नो लॉजिक इन दैट। यू आर एंडेंजरिंग हर फ्यूचर प्रेगनेंसीज ग्रॉसली। तो इसमें जो इंटीरियर फाइब्रोइड है उसको इंटीरियर उस इंसिजन से निकालो और पोस्टीरियर को पोस्टीरियर इंसिजन से निकाल लो। अब जहां तक कैविटी ओपन होने के नुकसानात हैं, क्योंकि आपने फिर ये डबल वॉल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो एक तो हम बात करते हैं कि कैविटी ओपन हो गई है तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन कैविटी ओपन होने के साथ साथ ये तो बात ही इंटीरियर पोस्टीरियर फाइब्रोइड को उनको अलग इंसिजन से निकालना है। लेकिन फर्ज किया ये सिर्फ एक फाइब्रोइड है इंटीरियर में या पोस्टीरियर में, तो कैविटी ओपन होने का हम जिक्र बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं कि कैविटी ओपन नहीं हुई सो वी आर हैप्पी कि कैविटी ओपन नहीं हुई। उसमें सिर्फ एक फायदा होता है कैविटी ना ओपन होने का कि उसमें एंडोमेट्रियम डैमेज नहीं होती, उसमें वो जो सिजेरियन सेक्शन वाले अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन वाले नुकसान आते हैं वो नहीं होते इन टर्म्स ऑफ एडहेरेंट प्लेसेंट एब्डोमिनल प्लेसेंटेशन इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसीज, वो नहीं होते, इंट्रायूट्राइन एडहेरेंस नहीं बनती। लेकिन जहां तक स्कार रप्चर होने के चांसेस हैं, अगर तो हम पूरे के पूरी मायोमेट्रियम की थिकनेस में से गुजर के हमें निकालना पड़ा फाइब्रॉइड, उसकी इन्यूक्लिएशन के लिए पूरी मायोमेट्रियम को हमें नीचे तक करना पड़ा जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंडोमेट्रियल कैनाल, तो उसमें तो पूरी की पूरी मायोमेट्रियम को हमने डिसेक्ट किया। सो द स्कार थिकनेस, स्कार की स्ट्रेंथ वही होगी जो एक अपर सेगमेंट यूट्राइन स्कार की थिकनेस या स्ट्रेंथ होती है। तो इसलिए हम उसको फिर उसमें रिस्क उतना ही होगा यूट्राइन रप्चर का इन द ऑनवर्ड प्रेगनेंसी जो कि अपर सेगमेंट सिजेरियन स्कार का होता है, सिर्फ उन फायदों के अलावा जो कि हमें कैविटी ओपन ना होने की सूरत में मिले कि एब्नॉर्मल प्लेसेंटेशन है या जो जिसमें रिस्क बढ़ जाता है जब हम कैविटी को ओपन करते हैं लाइक इन सिजेरियन सेक्शन, या फिर इंट्रायूट्राइन एडहेरेंस नहीं बनेंगी, बस ये उसके फायदे होते हैं, बाकी तो वही नुकसान होता है। चलें जी, अब मेरा ख्याल है हमने एट लेंथ मैडम मुझे ना एक बात बीच में ऐड करनी थी कि ना मैंने जो प्रेगनेंसी विद फाइब्राइड वाले टॉक है ना उसमें पढ़ा था कि जो अगर ऑनगोइंग पेशेंट की फर्टिलिटी विशेज हो और प्रेगनेंसी चाहती हो तो उसके लिए लेप्रोस्कोपी मायोमेक्टमी से ज्यादा बेटर है लेप्रोटमी, बिकॉज जो है ना मेटिकुलस स्टिचिंग का प्रॉब्लम होता है और इसलिए ठीक है। हाँ, ये इसलिए ठीक है कि उसमें लेप्रोस्कोपी में आप बहुत ज्यादा वो कॉटरी कर रहे होते हो। लेप्रोस्कोपी में आप जो फाइब्रोइड बेड है उसकी स्टिचिंग, उसका क्लोजर इज एट टाइम्स डेफिशिएंट, ये नहीं हम कह सकते कि, लेकिन डिपेंड करता है कि बेसिकली उसकी जो कैटेगरी है फाइब्रोइड, अब फाइब्रोइड मैटिंग रिमेन्स द मेन पॉइंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स। तो इसलिए इसमें अगर वो फर्ज किया उसका लेस देन 50% इज इन मायोमेट्रियम एंड मोर देन 50% इज इन द सबसिरोजल, तो दैट कैन बी डेल्ट विद लेप्रोस्कोपिकली विदाउट डेंजरिंग द मायोमेट्रियल इंटेग्रिटी ग्रॉसली। लेकिन अगर उसका मेन बल्क ही मायोमेट्रियम के अंदर है तो इसका मतलब है हमें वो मायोमेट्रियम बेड और वो सारे का सारा जो कैविटी है उसको काफी ज्यादा स्टिचिंग लेके क्लोज करना पड़ेगा या कॉटरी बहुत करनी पड़ेगी। तो इसलिए उसमें फिर स्कार की जो इंटेग्रिटी है, जो स्कार की स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और उसमें ऑनवर्ड जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के या फिर प्री टर्म लेबर होने के या एबॉर्शन होने के या फिर स्कार रप्चर होने के, वो चांसेस फिर उस सूरत में बढ़ जाते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स तो देखो दोनों चीजों के हैं। सिर्फ ईज ऑफ पोस्ट जो रिकवरी है वो दैट इज बेटर विद द लेप्रोस्कोपिकली, और उसमें मिनिमल इन्वेजिव तो है, उसके अपने बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उसमें, और दूसरी बात ये कि बहुत बड़ा फाइब्रोइड हो 10 सेंटीमीटर से बड़ा तो हम नहीं कर सकते लेप्रोस्कोपी से। अगर ये फर्ज किया मल्टीपल फाइब्रोइड्स हैं जिसमें टोटल आर्किटेक्चर ही उसका यूट्राइन जो है वो खराब हो गया तो भी उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो यूट्राइन वॉल डैमेज ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली चीजें हैं जिनको हमें लेप्रोस्कोपी की बात करते हुए पहले देखना चाहिए। अब देखो हम सिर्फ एक किताब की बात करते हैं कि ये पेशेंट है इसमें मैं लेप्रोस्कोपी के लिए करूंगी। फर्स्ट थिंक अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ दैट पेशेंट फॉर लेप्रोस्कोपी और द सूटेबिलिटी ऑफ पेशेंट फॉर लेप्रोटमी।
तो हर पेशेंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है फॉर अ सर्टेन सर्जिकल प्रोसीजर। इज इट क्लियर? मैम जी मैडम। आपने अभी बताया कि अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर क्वेश्चन आप कर रहे हो, मुझे समझ किसी की भी नहीं आ रही। हाँ, एक वन बाय वन। मैम अभी आपने बताया कि अगर एंटीरियर वाल में फाइब्राइड हो और पोस्टीरियर वाल में फाइब्राइड हो तो एंटीरियर को आप एंटीरियर इंसिशन देंगे, पोस्टीरियर को पोस्टीरियर इंसिशन, अगर कैविटी ब्रीच नहीं हो रही। अगर एंटीरियर में आपने इंसिशन दिया, कैविटी ब्रीच हो गई, तो क्या थ्रू कैविटी पोस्टीरियर निकालेंगे? कैविटी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। मैम सर्वाइकल प्लीज बता दें। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैम सर्वाइकल फाइब्राइड का बता दें प्लीज, अगर बीच सर्वाइकल फाइब्राइड हो। अब देखो मैम सर्वाइकल फाइब्राइड, आपकी आवाज कट रही है बीच में। सर्वाइकल फाइब्राइड का क्या? सर्वाइकल फाइब्राइड बड़ा है। देखो सर्वाइकल फाइब्राइड अगर बिग साइज का है तो यूरेटर के एनजी का भी। सर्वाइकल फाइब्राइड की तो बहुत सारी किस्में हैं। सर्वाइकल फाइब्राइड की बहुत सारी किस्में हैं। उसमें ये इंट्रा सर्वाइकल मीन्स के उसके किनाल दरमियान में रन कर रही होती है, एंड होल ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल जो फाइब्राइड होता है, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज। लेकिन इसमें आप पहले से एक ट्रांस सर्वाइकल कैथेटर जरूर डाल दें, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द सर्वाइकल कैनाल। अब एक होता है जो कि एक्स्ट्रा सर्वाइकल होता है, लेकिन होता सर्वाइकल रीजन में ही है। उसमें सर्वाइकल कैनाल इतनी डैमेज नहीं होती, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मसला होता है यूरेटर साइड पे। और दूसरी बात ये कि इसमें जो है वो ज़्यादा यूरोपैथी होने के चांसेस होते हैं। आप डेफिनेटली इसमें फिर जो है वो अगर यूरिटेरिक स्टेंटिंग कर लो पहले तो वो ज़्यादा बेहतर है, सो एज टू लोकेट, क्योंकि आईवीपी आप करवाओगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिस्टॉर्शन पता चलेगी, बट यू कैन नॉट हैव any signs of ureteric damage during the surgery. So if there has been ureteric stent being inserted preoperatively, so at least you can feel for the ureters while dissecting the cervical fibroid. And moreover, आपने मैम हेमिसेक्शन ऑफ यूट्रस तो लिखा होता है कि हेमिसेक्शन ऑफ यूट्रस करके फिर देन आप अप्रोच करें सर्वाइकल। मैम वही समझ नहीं आता उसका क्या मतलब है। उसमें देखो आपने इस जो सर्वाइकल फाइब्रोइड होते हैं ना, उसमें आपने हेमी सेक्शन की बात नहीं होती कि आप उसको पूरे का पूरा आधे का आधा काट दें फ्रॉम द फंडस टिल द सर्वाइकल। वो आपने प्रोमिनेंट सर्वाइकल फाइब्रोइड के ऊपर ही इंसिजन देना है। और इसमें जो है वो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा आपका लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि वो अगर एक्सटेंड भी हो तो उसमें भी थोड़ा सा होता है कि नीचे ब्लैडर में ना चला जाए, लेकिन साइड पे तो यूरेटर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है उसका साइज कितना है सर्वाइकल फाइब्रोइड का। For every cervical fibroid size and on its particular situation, the technique may differ, but you have to take care of the ureters on both sides. ठीक है? Excuse me, madam. मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन मैम, इस पेशेंट की हिस्ट्री थी कंटिन्यूस ब्लीडिंग की और ये प्रोजेस्टेरोन को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो हमने इसकी कोई सैम्पलिंग की बात नहीं की। मैम वो इसलिए नहीं की कि इसकी शॉर्ट हिस्ट्री थी। सैम्पलिंग हम बात इसलिए नहीं करते कि 30 years of age की पेशेंट है, नो रिस्क फैक्टर फॉर एनी एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, एंड मोर ओवर बाय एंडोवेजाइनल स्कैन वी कैन डिटरमिन द सर्वाइकल थिकनेस। ठीक है? और ज्यादातर जो ऐसे पेशेंट्स में जो बार दफा ब्लीड कर रहा होता है ऐसे पेशेंट, अब उस चीज को तो हमने नहीं डिस्कस किया हुआ कि जब फाइब्रोइड होता है तो उसमें हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है। दिस यू मस्ट नो कि हैवी ब्लीडिंग ऐसे पेशेंट्स में क्यों होती है। और सबसे ज़्यादा जो वेस्कुलर ब्लड सप्लाई है, सबसे ज़्यादा जो एंडोमेट्रियल चेंजेस या एंडोमेट्रियल थिकनेस के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो सबसे पहले फंडस पे आते हैं। तो इसलिए जो है वो एंडोमेट्रियल थिकनेस को आप देखोगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा डॉपलर फ्लो करा सकते हो, सब एंडोमेट्रियल डॉपलर फ्लो टू डिटरमिन एनी एब्नॉर्मल पैथोलॉजी, but the chances of having endometrial pathology in terms of hyperplasia or endometrial malignancy are very very rare at this age. अगर आपने इस एज पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है तो देयर मस्ट बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट, क्योंकि फाइब्रोइड के साथ ये पैटर्न आ सकता है। जी थैंक यू मैम। आ सकता है जी मैम थैंक यू मैम।
fibroid size has increased more rapidly, so it can cause, क्योंकि देखो vascular pattern पे भी तो depend करता है, even in the presence of fibroids, presence of fibroid है या chronic inflammation है, बाज़ दफा vascular deformities बनना शुरू हो जाती हैं, बाज़ दफा AV malformations बनना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए जो है वो that can explain the situation in this case, in the absence of pregnancy complication which you have to rule out first. ठीक है, so now we close it क्योंकि अब काफी टाइम हो गया. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपसे मिली. थैंक यू सो मच. ये बोनी हुड ऑपरेशन जो है, ये इसकी टेक्निक बता दें, ये क्या चीज़ होती है? It is a bony hood operation. जी. लार्ज फंडल फाइब्राइड के लिए होता है, जो कि एंटीरियरली भी कवर होते हैं और पोस्टीरियरली भी कवर. अच्छा. इसमें हम लोअर ट्रांसवर्स देते हैं उसके ऊपर. हम्म. और फिर उससे जो है ना हम पूरा फाइबर